This conference will now be recorded. हॅलो भार्गव सर, माझा आवाज येतोय? हो हॅलो. मॅडम. हो 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 हा हा सुरू करूया. हो, काही प्रॉब्लेम नाही मॅडम. वेलकम वेलकम मॅडम. गुड आफ्टरनून मॅडम. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. I am Dr. Vaishali Kurve. On behalf of our organizing committee, I'd like to welcome our today's guest speaker, Dr. Kalpana Taulare Madam, on the 7th day of Transitional Curricular Program Guest Lecture Series. Today's guest lecture topic is Medical Professional Ethics. We are very glad to have Dr. Taulare Madam, who has very good command on today's topic. She is profoundly talented and knowledgeable personality. Now I would like to request Dr. Bhargav Tappe sir to give her introduction. Thank you. Over to you, sir. Thank you, Kurve ma'am. It's honor to introduce our teacher as one of the session speaker, Dr. Kalpana Taulare madam, being my teacher since Nagpur in the department of Shari Rachna. She has teaching experience of 11 years. She's currently doing her PhD in Shari Rachna subject also. Madam has published 25 research papers until now. Madam is a health science education technology faculty in Maharashtra University of Health Sciences Nashik. Madam has expertise in education and published paper on medical education. Also published 2 books and also completed 6 workshop on medical educational technology. Madam has worked as a trainer for 25 research methodology and statistical workshop for PG and PhD scholar. Her area of interest is Ayurveda research, medical education, and curricular development. So today we have such a great faculty for as a guest speaker for this session. So without wasting any time, I would like to invite Dr. Kalpana ma'am for to start her lecture. Thank you Kalpana very ma'am. much. I am audible, Dr. Bhargav sir? Yes, ma'am. Thank you very much, Dr. Bhargav. First of all, good afternoon, everyone. Honorable Principal of Dr. Rajendra Gode Ayurved College, Hospital and Research Center, Amravati, organizing team of this whole transitional curriculum implementation program, Dr. Vaishali Kurve ma'am and Bhargav sir and whole your team. And I would like to first of all congratulate all students who take admission into the first BMS, as they are going to be would be professionalism in the medical field. And once again, I would like to thanks all for giving me opportunity to share my views on such a wonderful platform. Thank you very much. So with the kind permission of Dr. Vaishali madam, we can proceed in the today's session. Madam, shuru kar sakte hain? Okay, madam. You will. Okay. My slides are visible, ma'am? नहीं दिसत नाही आहेत मॅडम. हॅलो. I have shared. दिनेश, मॅडमच्या स्लाइड शेअर कर. मॅडम तुम्ही शेअर केलं का? हो, शेअर केलंय मी. स्क्रीन शेअर.
कल्पना मॅम दिसतंय तुमची स्लाइड दिसते. तुम्ही फक्त एक नेक्स्ट स्लाइड करून बघा, म्हणजे मग मी तुम्हाला सांगू शकतो की तुमची स्लाइड विजिबल होते. पण फर्स्ट स्लाइड इज विजिबल. हा येस येस. तुम्ही ऑब्जेक्टिव्ह मॉडेल स्लाइडची येस येस. युअर presentation is visible, ma'am. Okay, so we can proceed now. Okay. So very good afternoon, my dear students. We will proceed and discuss on the topic of ethics in the medical profession today. Okay. So objective of these sessions are participants should be able to impart the knowledge about ethics and medical profession and ethics insight from the Ayurveda. Okay. So what is meant by ethics? Anyone from student side can unmute their mic and share your नीति शास्त्र. नीति शास्त्र. ओके. आप अपना नाम भी बताइए. नीति शास्त्र स्टूडेंट भारत जो सावंत. भारत सावंत. ओके. भारत ने कहा ethics means नीति शास्त्र. Very good. Anyone else? Rules and regulations which we have to follow. Okay, very good. Rules and regulation we have to follow. Definitely very good. So ethics means it deals with the set of principles of right conduct. Okay. It helps in the distinguish between the what is right and wrong at a given time in a given culture with its moral consequence. If we talk in sense of Ayurveda, Sadvritta is mentioned in our classic text also. देखो अभी इथिक्स यानी हम मेडिकल प्रोफेशनल में आए इसलिए वो पढ़ना हमें जरूरी है, बट हम सोसाइटी में रहते हैं, इवन हम अपने घर में भी रहते तो बहुत सारे अपने घर के प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, है ना. बचपन से मम्मी पापा हमें वो इम्पार्ट करते कि बेटा नहीं, बड़ों के साथ ऐसे बात करना है, घर में कोई आया तो उसका वेलकम करना है ना. सो दीज आर पार्ट ऑफ अवर ट्रेडिशनल इथिक्स. So such a way that we have to follow the medical professional ethics as we entered in the medical profession. Okay. So what is exactly ethics means? It is nothing but the set of principles of right conduct. अच्छा क्या है, उसका एक प्रिंसिपल क्या क्या है वो देखना यानी इथिक्स होता है. It also helps us as a doctor to distinguish between what is wrong and what is right at a given time in a given situation. बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है अपने पास एज ए डॉक्टर, पेशेंट इमरजेंसी में है, हम उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते या उसको कुछ नहीं बता सकते, तो ऐसे कंडीशन में सही क्या है और गलत क्या है ये पूरी तरह डॉक्टर के ऊपर डिपेंड होता है. उसमें भी हमें इथिक्स का ये जो प्रिंसिपल्स है वो मदद करते हैं. और सदवृत्ति यानी हमारा आहार विहार आचार कैसे होना चाहिए, बड़ों के साथ व्यवहार कैसे होना चाहिए, ये सभी आयुर्वेद में हमारे दिया हुआ है. ओके. इफ वी look out at the history of the development of ethical principles, so Charak Samhita, Sushruta Samhita before 2000 BC and 2000 AD and Hippocratic Oath near about 600 AD उसका काल माना गया है. तो हिपोक्रेटिक ओथ तो वेस्टर्न साइंस जो है उनका जो प्रिंसिपल है वो मानते हैं, बट उसकी भी पहले आयुर्वेद में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में इथिक्स जो है वो वेल एक्सप्लोर्ड किए हुए है. अगर आगे हम देखेंगे ही वो सबको एक एक पॉइंट में चरक ने सुश्रुत ने कैसे इलैबोरेट भी किया है. ओके. सो व्हाट इज द चरकास फॉर इथिकल प्रिंसिपल, इसे हम वैद्य वृत्ति कह सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल चरका स्टेटेड दैट योर बिहेवियर मस्ट बी friendful. You must show the sympathy towards sick. You have to show interest in the case according to one's capabilities and indifferent to those who are moving towards them. Means what? Friendship, maitri. Second का है sympathy. Sympathy से भी एक word आता है empathy. Empathy means exactly what patient felt. We have to feel that. ऐसे फीलिंग आना जस्ट मदर और चाइल्ड का जो रिलेशन होता है उसी में हो सकता है, बट एज ए प्रोफेशनल एज ए मेडिकल स्टूडेंट यू हैव टू एम्पथाइज द फीलिंग ऑफ sick patient also. Okay, that is called as the karunya artishu. Okay, interest in case according to one's capabilities. शक्य प्रीति मीन्स जो हम ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं उसी को ठीक करो, अदरवाइज अगर पेशेंट असाध्य है तो उसे हमें दूसरे वैद्य की तरफ भेजना चाहिए कि हमसे ये ट्रीटमेंट नहीं होती है. नाउअडेज हम देखते हैं बहुत सारे डेड पेशेंट भी होते हैं तो आईसीयू में एडमिट होते हैं और उनका बिल केवल निकाला जाता है. सो ये सारे प्रिंसिपल चरकाचार्य ने बताए हुए हैं. As well as Sushruta Samhita also well explore the essence of ethics. He says that the patient gives himself up in the doctor's hand and has no misgiving about him.
Therefore, it is the physician's duty to look after him as his own son. सुश्रुत ने क्या कहा है कि पेशेंट को पुत्रवतम आचार्यते, मीन्स अपना बच्चा जैसा होता है उसी के समान देखो। तभी वैद्य जो है एक बिना बायस किए हुए पुत्र यानी पेशेंट यानी जो रुग्ण का क्या बीमारी है सभी समझ सकता है। सो इट इज वेरी ग्रेट थिंग। और आज के साइंस में भी हम अगर देखते हैं तो एक कंडीशन आती है, कोई भी रिसर्च करे या ट्रीटमेंट दे तो एक सवाल हमसे पूछा जाता है, एज ए डॉक्टर if you would like to apply this drug on yourself or your child, then you can apply it on the patient. Okay, मीन्स उन्होंने कहा कि अपने बच्चे पे अगर आप दे सकते हैं, इतना आपको सेफ लग सकता है तो आप वो पेशेंट पे दो। मीन्स व्हाट अल्टीमेटली द मॉडर्न साइंस सेज, बिहेव with patient as your own son. Okay, so patient may be doubt him his relative, his son and even his parents, but he has a full faith in the physician. पेशेंट जब भी डॉक्टर के पास आता है तो उसको अपने कोई भी रिलेटिव या इवन अपने बच्चे पे भी विश्वास नहीं रहता जितना विश्वास उसको डॉक्टर पे रहता है। he handed himself in our hands totally, so we have to become very much careful about him. in modern science, Hippocrates oath, जनरली कन्वोकेशन सेरेमनी होता है तो हिपोक्रेटिक ओथ जो है वो लिया जाता है। तो हिपोक्रेटिक ने यानी नियर अबाउट 600 BCE में ये प्रिंसिपल दिया हुआ है। इट इज नथिंग बट द स्टेटमेंट इन पोएटिक फॉर्मेट, बट द ऑल कंटेन द एसेंस ऑफ टुडेज इथिक्स। इसमें कहा है कि आपको पेशेंट के साथ बिहेव कैसा करना है ना, उससे ज्यादा पैसा नहीं लूटना है, ये सभी हिपोक्रेटिक ओथ में जो है वो कहा हुआ है। ठीक है, सो हिस्ट्री अगर देख रहे हैं हम लोग तो सभी ने एक्सप्लोर किया है, बट आज के अगर हम प्रिंसिपल देखते हैं, इथिकल प्रिंसिपल, इथिकल गाइडलाइन प्रोफेशनल मेडिकल एजुकेशन में, वो इतने स्ट्रिक्ट है, इतने स्ट्रांग है, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बिकॉज आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1939 जर्मन फ्रंट वाज लॉस्ट देयर वॉर। और उन्होंने क्या किया, हमने ये वॉर क्यों हारा, इसके लिए जो वहां के प्रिजनर्स थे, कैदी थे, पर्सन्स, उनके ऊपर जो है वो ट्रायल शुरू किया, उनको मेडिसिन देना शुरू किया अलग अलग प्रकार के। तो जैसे हम पिक्चर में देख रहे हैं कि बॉइलिंग वाटर में उनको सडनली डुबाना, उबालना, सो दे टर्न सो मेनी पीपल इन अ ग्रेवयार्ड। इतना ये यानी कोल्ड वाटर सबमर्शन नाजिस एक्सपेरिमेंट फेमस है। और ऐसा कांड अब अगर दोबारा नहीं होना चाहिए, इसलिए फर्स्ट इंटरनेशनल कोड Nuremberg Code arises in 1947, which highlight the essentiality of the informed consent. Means what? एक सभी जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा कोड होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए कि जब तक पेशेंट की इच्छा नहीं होती, स्वयं विलिंग नहीं होता, उसको कोई भी मेडिसिन ना दिया जाए, उसको किसी में भी पार्टिसिपेट ना किया जाए। सो today even also we consider the informed consent as a cardinal principle of our practice. Okay, so that is the क्या बोलते हैं हम, न्यूरमबर्ग कोड की देन है कि आज हम इनके इन्फॉर्म कंसेंट को इतना मानते हैं। उसके पश्चात आफ्टर दैट डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी इन 1964 generalized the whole principle of the ethics of the medical profession, and these are the some guidelines which developed time to time and amended time to time. Nowadays Indian guidelines, ICMR के गाइडलाइन, इथिकल गाइडलाइन हम पूरी फॉलो करते हैं। सो टू सम अप होल दिस गाइडलाइंस वी कैन सम अप इनटू द 4 बेसिक प्रिंसिपल्स। पूरे जितने भी गाइडलाइंस है उसको हम 4 प्रिंसिपल में केवल डिवाइड कर सकते हैं, सम अप कर सकते हैं। कैसे? आपको 4 बातें याद रखनी है, एवरी स्टूडेंट मस्ट नो दिस। द प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशियंस, प्रिंसिपल ऑफ नॉन मालफिशियंस एंड द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। Autonomy, beneficence, non-malfeasance and the justice. These are the 4 principles together called as the universal principalisms of medical professions. Okay, ये हमें याद रखना है। So these are the basic 4 folds of the Western ethics. We will go one by one. So first of all, autonomy. आप पिक्चर में देख रहे हैं, what is meant by autonomy? You can just guess. It is nothing but the self law, self governance, or right to self determination, or in short language we can say that the person's right. Means what? पेशेंट है या पर्सन है, दोनों व्यक्ति का ये खुद का राइट है, उसको कौन सी ट्रीटमेंट लेना है, उसको कौन से डॉक्टर के पास जाना है,
उसको कब तक ट्रीटमेंट लेना है या नहीं लेना है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ ऑटोनॉमी। पहला प्रिंसिपलिज्म कौन सा है? ऑटोनॉमी का, कि टोटली पूरा वॉलंटियर पेशेंट के ऊपर डिपेंड होता है इफ यू वांट टू टेक ट्रीटमेंट और नॉट, इफ यू वांट टू लिव और कंटिन्यू विद दैट ट्रीटमेंट। So we have to protect this law of autonomy with every patient as a doctor. So first principle is the principle of autonomy. Second one is the principle of beneficence. नाम से पता चलता है to do good every time with the patients. Even in dream we can't suggest harmful anything to the patients. सपने भी हम ऐसा नहीं सोच सकते कि किसी भी पेशेंट का बुरा हो। So beneficence means beneficial things. That means obligation to preserve life, restore health, relieve the suffering and maintain the function. ठीक है, कुछ पेशेंट का लाइफ बचा है तो उसको प्रिजर्व करके रखना है, उसकी हेल्थ बिगड़ रही तो जितनी है उतनी मेंटेन करके रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत पेन है तो या कोई दुख है उसका तो दूर कर सकते हैं हम लोग, और मेंटेन ऑल दिस फंक्शन स्मूथली। बेनिफिशियंस का मीनिंग ये होता है टू डू गुड ऑलवेज। ओके, और जैसे हम कोई अच्छी बात करनी जाती है तो निस्वार्थ जिसे बोलते हैं, देयर मस्ट नॉट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मीन्स कोई मनी प्रॉफिट अपना पर्सनली डॉक्टर को यहाँ पे देखने की इजाजत ही नहीं है, परमिशन नहीं है बाय द रूल्स ऑफ मेडिकल प्रोफेशन। ओके, सो मस्ट नॉट एंगेज इन एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन पेशेंट बेस्ड इंटरेस्ट। हमें ऐसी कोई भी बात करनी नहीं है कि जो पेशेंट के इंटरेस्ट में नहीं है। सो दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ bioethics, that is called as the beneficence. Third one is the non-malfeasance. Principle of non-malfeasance means do not harm. कैसे do not harm? बाई चांस हम अगर पेशेंट अपने पास आता है, सर्जरी करते हैं या उसको कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो उसको कुछ न कुछ हार्म होता है, डेफिनेटली हम मानते हैं, बट दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन द मिनिमम रिस्क। अगर हम रिस्क और उस बेनिफिट का रेशियो कैलकुलेट करते हैं कोई भी मेडिसिन देने के पहले, तो उसका बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए और रिस्क कम होना चाहिए, तभी वो ट्रीटमेंट लागू होता है पेशेंट को देने के लिए। सो दिस इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ नॉन मालफिशियंस, मीन्स डू नॉट हार्म। गलती से भी कोई गलती हमारी तरफ से नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज लॉ भी इतने स्ट्रिक्ट है कि अगेंस्ट पूरे डॉक्टर के वो जाते हैं। तो हमें पहले केयरफुल रहना है कि जो है वो कोई भी ऐसा हार्म अपनी तरफ से नहीं होना चाहिए। फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल इज द जस्टिस। जस्टिस यानी क्या होता है? इक्वल विथ ऑल, सबके लिए बराबर है। कोई भी लॉ है तो वो सबके लिए बराबर है, तो दैट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। सो एक्शन मस्ट बी कंसिस्टेंट, अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी अपने डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, it should not be discriminated by age, sex, religion, race, position or rank of the patient. पेशेंट कौन से समाज से है, कौन से जाति से है, रिच फैमिली से है, ऐसा कोई भी मिसबिहेवियर हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए। हमारे लिए बस वो पेशेंट है, इतना एक कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, अलोकेशन ऑफ मेडिकल रिसोर्सेज मस्ट बी फेयर एंड अकॉर्डिंग टू नीड। जितने भी मेडिकल रिसोर्सेज अवेलेबल है, अगर हम प्राइवेट प्रैक्टिस की बात करते हैं तो इट्स ओके, बट जो गवर्नमेंट पॉलिसीज आते हैं वहां पे अनफेयर मीन्स होने के चांसेस रहते हैं, बट वहां पे भी इथिकल प्रोफेशनलिज्म इतने स्ट्रांग होते हैं कि आपको कोई भी ऐसी वैसी हरकत करने की परमिशन नहीं होती है। ठीक है, फिजिशियन शुड नॉट मेक डिसीजन रिगार्डिंग द इंडिविजुअल बेस्ड अपॉन द सोसाइटल नीड्स। उनकी जरूरत के हिसाब से फिजिशियन को डिसीजन नहीं लेना है, बल्कि व्हाट इज एक्चुअली नीडेड, on that basis only physician must take the decision. Okay, so these are the four basic principles: autonomy, second one is the beneficence, third one is the non-malfeasance, and fourth one is the justice. Okay, remember this all four principles. If we generalize this four principle, we can divide in multiple principles with the help of that four principle. First principle is called as the principle of essentiality, means आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ ऑल अल्टरनेटिव्स। जब भी ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट हमारे पास आता है या कोई भी काउंसलिंग के लिए आता है, सिंपल कोई भी बात पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप की आती है, तो जो इसेंशियल बात है उसको वही हमें बताना चाहिए। अननेसेसरी हमारा बेनिफिट है या कोई हमारा हमें डिस्काउंट दे रहा है या कट प्रैक्टिस हो रही है, ऐसे कोई भी हमें नहीं करना चाहिए। ओके, वॉलंटरीनेस, अगेन वी हैव एक्सप्लेन्ड इट इन द फॉर्म ऑफ इनफॉर्म कंसर्न, ऑटोनॉमी राइट, कि जब तक
पेशेंट खुद स्वयं इच्छा से तैयार नहीं होता। कब होना चाहिए? पहले उसको हमें बताना है भाई ये ट्रीटमेंट है, ये गाइडलाइन है, इसके ऐसी रिस्क भी हो सकती है, इसका बेनिफिट नहीं भी हो सकता है, फिर भी आप तैयार है आपकी मर्जी से तो हम ये सर्जरी या ये ट्रीटमेंट में, ये प्रोसीजर में जा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ वॉलंटियरनेस। इनफॉर्म कंसेंट, आगे डॉक्यूमेंटेशन है ये, उसके बारे में बात ही करेंगे। बट हर एक ओपीडी में आज जैसे बैठते हैं आप, प्रैक्टिशनर होके आते हैं या हॉस्पिटल में काम करते हैं या कोई भी प्रोसीजर करते हैं, छोटा पंचकर्म का यानी शोधन शमन, कोई भी प्रोसीजर करते हैं, माइनर ओटी में प्रोसीजर करते हैं, मेजर ओटी में प्रोसीजर करते हैं, तो उसके पहले पेशेंट का कंसेंट लेना बहुत जरूरी होता है। दैट इज कॉल्ड एज इनफॉर्म कंसेंट। मीन्स वो प्रोसीजर के बारे में पेशेंट ने आपको उसकी लैंग्वेज में जो वो समझ सकता है पूरा समझा के दिया, पेपर पे वो लिखा और उसके नीचे उसका साइन लिया, यस आई एम रेडी टू डू ऑल दिस थिंग्स, सो उसे कहते हैं इनफॉर्म कंसेंट। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द कार्डिनल प्रिंसिपल टू बी ऑब्जर्व थ्रू आउट द होल प्रैक्टिसेस। Non-exploitation, this is again one most important principle. Minimum risk should be given to the patient. Privacy and confidentiality, disclose permission from participant, example photograph। जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी, पेशेंट हमारे पास आता है तो डॉक्टर को बहुत सारी बातें सिर्फ पता होती है जो किसी और को, इवन उनके क्लोज रिलेटिव को भी नहीं पता होती है। सो इट्स आवर ड्यूटी टू मेंटेन दैट कॉन्फिडेंशियलिटी। ऐसा नहीं कि ये पेशेंट के बारे में मुझे पता है, इसको HIV है तो मैं सब जग को जाके बताऊं नहीं रे इसको HIV। सो प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट again principle we have to follow in our profession. Okay, precaution and the risk minimization, हमें इतनी केयर करनी है पेशेंट की कि रिस्क जो अगर है बाई चांस कुछ भी हो रहा है तो वो कम हो जाए। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो भी मीन हो हमारा एकदम फेयर हो, ऑनेस्ट हो। ओके, कोई भी उसमें बायस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव। जो भी मेडिसिन मार्केट में आ रहा है या जो भी डॉक्टर कुछ नया रिसर्च कर रहा है, इट शुड बी ओपन फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग और बेनिफिशियल टू ऑल ह्यूमन बीइंग। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या है, मेडिकल प्रोफेशन का पर्पस क्या है कि जो हेल्थी स्टेटस है ह्यूमन बीइंग का उसको मेंटेन करके रखना और जो डिसीज पर्सन है उसका क्योर करना। स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, तो ये सारी बातें उसमें आती है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक डोमेन अंडर द लॉ इन फोर्स ऑफ दैट थिंग। जैसे आज का गवर्नमेंट, आज के इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो भी कहते हैं उसी के हिसाब से हमें काम करना है। एज ए मेडिकल स्टूडेंट, एज अ वुड बी डॉक्टर, यू हैव टू फॉलो ऑल दिस प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लायंस, डायरेक्शन एंड गाइडलाइंस लेड डाउन बाय द प्रिस्क्राइब। जैसे हम लोग ये आज रूल्स पढ़ ही रहे हैं कि 4 प्रिंसिपलिज्म होते हैं, आपको ये रूल फॉलो ही करने हैं, है ना। अगर ये आप फॉलो नहीं करते तो नॉन कॉम्प्लायंस का जो एक क्या बोलते हैं, इफ यू नॉट फॉलो ऑल दिस गाइडलाइंस then very big problem can be arise in the medical ethics. Okay, so these are the general principles, basic 4 principles, उसको generalization किया मीन्स और elaborate किया तो हम उसे general principle के रूप में देख सकते हैं। अभी what we see next, ethics and ayurveda। आयुर्वेद में इथिक्स दिए है क्या? ये तो मॉडर्न वेस्टर्न साइंस के इथिक्स हमने पढ़े हैं मेडिकल प्रोफेशन के। तो जिस प्रोफेशन में हमने एडमिशन लिया है, आयुर्वेद जिसे कहते हैं, BMS फर्स्ट ईयर के अगर आप स्टूडेंट है तो हमारे के लिए ऐसा कुछ है क्या? यस, डेफिनेटली, श्योर, 101% मोर देन दैट, कि चरक सुश्रुत और वाग्भट इन सभी साहित्यकारों ने जो बताया उससे भी कई गुना ज्यादा है और वो इंडियन कल्चर को लेके पूरा फॉलो होता है। ठीक है, चरका व्हाट सेज दैट प्राइमरी ड्यूटी ऑफ फिजिशियन इज टुवर्ड्स देयर पेशेंट। ओके, prime concern of the Vaidya or doctor should be the safety and best interest of the patient. Maintain the confidentiality, और जो गुप्त का है जैसे कि पेशेंट के भेद किसी को भी ना बताने वाला होना चाहिए वैद्य। ओके, कॉम्प्रोमाइज द इंडिपेंडेंट जजमेंट, वैद्य खुद ही डिसीजन सभी, यानी ट्रीटमेंट क्या देना है लेगा ही, बट अगर कोई स्त्री पेशेंट आपके पास आया है तो उसके अधिपति यानी उसके पति को पूछना या उसके जो भी स्वामी उसको पूछना बहुत जरूरी समझा है यहाँ पे। ठीक है, अनसेवरी फाइनेंशियल डील्स का है कि कल्याण अभिवेशन, सबका कल्याण हेतु काम करना चाहिए, ना कि केवल धन के लिए। धन तो हमें प्राप्त ही होगा इन फाइनेंशियल टर्म्स। ओके, अगर हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अपनी ट्रीटमेंट अच्छी है तो डेफिनेटली वी विल गेट दैट, बट
don't work for that only. Okay, refrain from advertising. बहुत सारे वैद्य की एडवर्टाइज आती है, बट स्पेसिफिक इन आयुर्वेद में कहा है ये कि अपने आप को खुद इतना मत बोलो। कैसे वो भोंदू वैद्य होते हैं ना, जो बहुत क्या बोलते हैं, बहुत बोलते हैं खुद के बारे में, ऐसा मैं वैसा, ये ड्रग ऐसा काम करेगा वैसा, ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना है। सो दैट इज इवन मेंशन्ड इन आवर टेक्स्ट। एंड बी केयरफुल अबाउट ट्रीटिंग द वुमन पेशेंट। ये तो हमने कहा है कि स्त्री सहसा सहवर्जते, स्त्री के साथ कभी भी अकेले इवन बात भी नहीं करने के लिए पर स्त्री के साथ चरकाने, ये सारे इथिक्स मेडिकल प्रोफेशन में अपने आयुर्वेद की संहिता में मेंशन किए हुए। ठीक है, इफ वी आर गोइंग टू डील विद द वेस्टर्न बायोएथिक्स एंड आयुर्वेदा इथिक्स, मैंने कहा कि जो वेस्टर्न बायोएथिक्स है वो पूरे आयुर्वेदा इथिक्स में वैसे के वैसे मिलते हैं, बट वेस्टर्न बायोएथिक्स आर मेंशन्ड इन इंग्लिश एंड आयुर्वेदिक इथिक्स के लिए हमें संस्कृत टर्म्स जो है कुछ मिलते हैं, बट ये संस्कृत टर्म्स में उससे भी ज्यादा कई मीनिंग जो है हम देख सकते हैं। जैसे कहा है कि ऑटोनॉमी के लिए फॉर एग्जांपल वी मस्ट रिस्पेक्ट द पेशेंट, और रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड शुड बी टुवर्ड्स योर patient and your profession. So what Ayurveda stated that वैद्य वृत्ति, मैत्री कारुण्य आर्तेषु जो कहा है ना कि वैद्य की वृत्ति वहां पे फॉलो होनी चाहिए। ओके, वैसे ही शिष्य का गुरु के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए, सदवृत्त मीन्स राइट कंडक्ट कैसा हो पेशेंट गुरु शिष्य का। ठीक है, ये सारी बातें आयुर्वेद में जो है वो बताई हुई है, मोर इलेबोरेटली एक्सप्लोर की हुई है। ओके, second one is beneficence. Western science says that do beneficials, action done for the benefit of others and to prevent the harm. आयुर्वेद में क्या कहा है इसके संदर्भ में, योग्य विधि करो, आप पहले प्रैक्टिस करो, डेमोन्स्ट्रेट करो, प्रैक्टिस करो। डायरेक्ट सर्जरी यानी पेशेंट के ऊपर जाके आप और बगंदर का सर्जरी कर्म नहीं कर सकते, पहले उसके लिए इंसिजन लेना सीखो। इंसिजन किस पे लोगे, तो जो फल उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन का योग्य विधि, अगर आप सुश्रुत पढ़ेंगे पूरा चैप्टर ही दिया है। तो बैंडेज बांधना है, डायरेक्ट पेशेंट के ऊपर फ्रैक्चर हुआ तो बैंडेज बांधेंगे नहीं, पहले एक डमी बॉडी, आज भी हम सिमुलेशन यूज करते हैं, सिमुलेशन कहते हैं मॉडर्न साइंस उसे, वहां पे हमने पुतला उसे कहा, पुरुषोत्तम पुतला, तो पुतले के ऊपर जो पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए, हाउ कैन वी बैंडेज, है ना, एग्जैक्टली कहाँ से कितना प्रमाण में होना चाहिए, पहले प्रैक्टिस करेंगे और फिर पेशेंट के ऊपर जाएंगे। ठीक है, टुडे वी नीड द रजिस्ट्रेशन फॉर आवर प्रैक्टिस, बराबर है। एमसीआईएम का रजिस्ट्रेशन होता है, सीसीएम का रजिस्ट्रेशन होता है। आपका इंटर्नशिप जैसे खत्म होगा तो पहले चरक ने भी कहा है, जैसे ही आपके गुरु यानी शिष्य परंपरा खत्म होती है, आपको पूरा ज्ञान आता है, यू मस्ट टेक राज अनुज्ञा, मीन्स परमिशन ऑफ योर किंग टू बी एंटर्ड इनटू द मेडिकल प्रोफेशन, कि मैं अभी जाके प्रैक्टिस कर सकता हूँ क्या। ये जब तक राजा अनुज्ञा उनको नहीं मिलती थी वो प्रैक्टिस में नहीं बैठ सकते। ठीक है, next is related with the non-malfeasance. Western bioethics says that do not harm or risk harm on another. Okay, means risk और जो क्या है बेनिफिट का रेशियो एकदम बेनिफिट उसमें ज्यादा होना चाहिए। So आयुर्वेदा ethics what says, वैद्य निमित्त व्यापद, वैद्य ने गलती की तो व्यापद होता है, पहले ही कहा है कि आपको वहां पे केयरलेसनेस बिल्कुल नहीं करना है। You should not become careless so you can avoid the harms. योग्य अयोग्य, पेशेंट के लिए योग्य क्या है अयोग्य क्या है, पथ्य अपथ्य कल्पना, ये सभी हमने बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। आपने नहीं पढ़ा है बट जो सीनियर फैकल्टीज है आपके टीचर उन्होंने सभी ने पढ़ा है, और आपको ये पूरा जो है वो अजम भी करना है धीरे धीरे। ठीक है, जस्टिस, जस्टिस यानी हमने कहा था कि इक्वल बिहेवियर विथ ऑल, सेम आयुर्वेद में कहा है कि सदाचार होना चाहिए, सिंपल लिविंग स्टाइल विथ व्हाइट क्लॉथ। व्हाइट क्लॉथ एप्रन सेरेमनी केवल मॉडर्न साइंस में ही नहीं होता है, बट जब हम प्रैक्टिस में बैठते हैं, है ना, शिष्योपनी अध्याय में कहा है कि आपको सफेद श्वेत वस्त्र पहन के बैठना है, और जब आप शिष्य परंपरा में हो यानी जब एजुकेशन ले रहे हो आप, तो आपको कषाय वस्त्र यानी गेरुए रंग के वस्त्र पहनना है। तो जैसे आप एप्रन थ्रू आउट इसमें यूज करते हैं, वैसे यहाँ पे भी यूनिफॉर्म का जो कोड है वो बताया हुआ है। ऐसा क्यों कहा है उन्होंने, यूनिफॉर्म क्यों बताया है? यूनिफॉर्म इसीलिए होता है कि कोई भी डॉक्टर दिख रहा है तो कोई डॉक्टर बहुत अमीर है, पेशेंट शायद हिचकिचाए आपके पास आने के लिए, ऐसा न हो, इसलिए एक यूनिफॉर्म कोड, ड्रेस कोड जिसे बोलते हैं, वो हमारे प्रोफेशन में रहता है। ओके, और यही व्हाइट एप्रन सेरेमनी वेस्टर्न बायोएथिक्स साइंस में जब कन्वोकेशन पीरियड होता है, आपकी इंटर्नशिप खत्म होती है, तो वो मनाते हैं। वैसे ही हम लोग जैसे हमने कहा कि सुश्रुत चरक ने भी वो सभी डिस्क्राइब किया है,
वो भी हम करते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वेस्टर्न बायोएथिक्स एंड in comparison with the ethics explored in the Ayurvedic text also. So हम बार बार कहते हैं आप प्रोफेशनल कॉलेज में आए हैं, है ना, BMS फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन हुआ है, अभी मेडिकल प्रोफेशन बहुत नोबल प्रोफेशन माना जाता है, सबको पता है. सो व्हाट इज मीन बाय दिस प्रोफेशनलिज्म एग्जैक्टली? सो प्रोफेशनलिज्म इज अ टर्म व्हिच एम्बॉडीज न्यूमरस क्वालिटीज ऑफ फिजिशियंस एज अ पब्लिक सर्वेंट. मीन्स आप एक सेवक हो समाज के, इसके लिए क्या क्या नियम है, आपकी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो सब बताना है प्रोफेशनलिज्म जो है वो होता है. ओके, व्हाट मेडिकल प्रोफेशन नीड्स एग्जैक्टली? प्रोफिशिएंसी मीन्स हाईएस्ट डिग्री स्किल्ड. आप जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप सर्जरी करना चाहते हैं, आप आंखों का चेकअप करना चाहते हैं, है ना, ENT, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, या आप स्त्री रोग में करना चाहते हैं, तो उस फील्ड का आपको एकदम हाई डिग्री का स्किल आना चाहिए, तो उसे कहते हैं हम प्रोफिशिएंसी. ठीक है. सेकंड वन इज द कम्युनिकेशन स्किल्स. एज ए स्टूडेंट, जैसे हमारा पेशेंट के साथ बहुत क्लोज रिलेशन होता है ना, मेडिकल प्रोफेशन यानी डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप सबसे ज्यादा हायर एटीट्यूड पे अपना होना चाहिए, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होना चाहिए. हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव, हाउ टू रिएक्ट इवन इन हैप्पी सिचुएशन एंड इन सैड कंडीशन आल्सो. यू मस्ट बी कॉन्फिडेंस. कोई भी सर्जरी करने के लिए या इवन सिंपल पेशेंट का एक्सप्लेनेशन एग्जामिनेशन करने के लिए भी बहुत कॉन्फिडेंस लगता है, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए. एवरीथिंग नीड्स कॉन्फिडेंस इन द फील्ड ऑफ मेडिकल प्रोफेशन. ओके. सेकंड वन इज द क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. मींस व्हाट एग्जैक्टली मीन? आप देखो, हर एक पेशेंट नया रहता है, कोई भी पेशेंट पुरानी हिस्ट्री के साथ आता है, बट हर एक पेशेंट में कुछ ना कुछ अलग कंडीशन रहती है. सो यू मस्ट थिंक क्रिटिकली अबाउट दैट पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ द पेशेंट एंड यू हैव टू डेवलप द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. मीन्स ये पेशेंट की कंडीशन ऐसी है, इसको हम मेडिसिन इस प्रकार ही देंगे तो फायदा होगा या नहीं होगा या कुछ हार्म होगा, जो भी सोचना है आपको. सो क्रिटिकल थिंकिंग इज नेसेसरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेंडेंसी एज अ मेडिकल स्टूडेंट यू मस्ट एक्वायर इट. ओके. फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए हमेशा. कॉलेज में आए हैं, इंटर किए, तो बहुत सारे प्रोफेशन, यानी इतना बड़ा है अपना मेडिकल प्रोफेशन और नॉलेज भी बहुत है. केवल ये 4 साल का 4.5 का सिलेबस तो आपको डिग्री देने के लिए है, बट इससे ज्यादा आप बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कुछ और है. नेक्स्ट, लीडरशिप एंड टीम वर्क. बहुत बार देखते हैं मेडिकल प्रोफेशन में लीडरशिप डेवलपमेंट एक करिकुलम का पार्ट ही होता है अपना. क्यों हमें काम पड़ता है लीडरशिप डेवलपमेंट का? क्योंकि हमें बहुत जगह टीम वर्क से काम करना पड़ता है ना. कोई एक काम सिंगल पर्सन से नहीं होता है, मल्टीपल डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सेस, ऐसे बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं. तो एक लीडरशिप स्किल होता है. लीडरशिप यानी मैं बराबर हूँ, मेरी तरह चलो, ऐसा नहीं. सबको साथ में लेके चलना, उनकी सुनना और जो नेसेसरी वो स्टेप रूल आउट करना. तो लीडरशिप डेवलपमेंट, टीम वर्क कैसे करना है, ये सभी मेडिकल प्रोफेशन के जो है नीड्स है, एंड यू हैव टू एक्वायर ऑल दिस प्रोफेशनल स्किल्स विद इन यू वन बाय वन. ओके. प्रोफेशनल कंडक्ट एग्जैक्टली ऑल्ट्रुइज्म मीन्स नथिंग बट द पेशेंट इंटरेस्ट होना चाहिए. एज ए डॉक्टर आपको सेल्फ इंटरेस्ट उसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए. अकाउंटेबिलिटी मीन्स ट्रांसपेरेंसी. एक्सलेंस होना चाहिए मीन्स आपका नॉलेज परफेक्ट होना चाहिए और आपका प्रैक्टिकल हैंड भी परफेक्ट होना चाहिए. और इवन नॉलेज और प्रैक्टिकल हैंड होते हुए आपका हार्ट यानी हृदय भी अच्छा होना चाहिए. यू मस्ट बी एक्सपर्ट बाय योर हार्ट आल्सो. मीन्स योर बिहेवियर आल्सो जो है बहुत अच्छा होना चाहिए. ड्यूटी, ठीक है. ड्यूटी इटसेल्फ मीन्स यू आर रेडी टू गिव सर्विस टू द पब्लिक, है ना. हमारी ड्यूटी है. आज हम पेंडेमिक में देख ही रहे हैं, सभी लोग ऑन ड्यूटी है. सभी डॉक्टर, हेल्थ वर्कर से बोल सकते हैं, डॉक्टर तो है ही बट सभी हेल्थ वर्कर ऑन ड्यूटी है, क्योंकि हमें तो गवर्नमेंट से आदेश आते हैं, यू आर एज अ मेडिकल प्रोफेशनल इट्स योर ड्यूटी. तो ये ड्यूटी है मीन्स दैट we have already accepted that we have to serve the patients, we have served the society whenever there is a need. Okay. Honor and integrity, highest attitude है ये. मीन्स रिस्पेक्ट किसी को करना है, ऑनर करना है, इंटीग्रिटी तो ये मेडिकल स्टूडेंट में होना ही चाहिए. रिस्पेक्ट फॉर अदर्स. एज ए डॉक्टर
आपके साथ जो आपके कलीग्स काम करेंगे, आपके अंडर जो स्टाफ नर्स, वार्ड बॉयज या जो भी काम करेंगे आपके हॉस्पिटल में, आपके एकेडमिक सेशन में, आपके रिसर्च सेंटर में, तो आपको सबका रिस्पेक्ट करते आना चाहिए। ठीक है, अभी ये जो है वो सभी अच्छी क्वालिटीज है। एज अ मेडिकल स्टूडेंट वी हैव टू लर्न इट। ओके, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, सर्विस, कमिटमेंट, कम्युनिकेशंस, अकाउंटेबिलिटी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये भी और कुछ स्किल्स यहाँ पे हमें जो है वो बताई हुई है जो हमें एक्वायर करनी है। अगर नहीं है अपने पास तो हम बीएमएस फर्स्ट ईयर में, अभी हमारा 7वां दिन है करिकुलम इम्प्लांटेशन का, तो यहाँ से हमें शुरू करना है। वी हैव टू एक्वायर दिस ऑल थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सभी हमें आत्मसात करने के लिए क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो ऑल दिस। हमें क्या करना है ये पता होना चाहिए। जैसे ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन उसी के लिए किया है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपको क्या क्या आना चाहिए। उसी के हिसाब से 15 दिन का करिकुलम जो है वो सेटअप किया हुआ है। उसी में इथिक्स यानी आपका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, मॉरल क्या होगा, उसके लिए सेशन पर्टिकुलरली रखा जाता है। ऑनेस्टी, सबको पता है, ऑल नोज दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। हम खुद के साथ ऑनेस्ट रहे तो हम जग के साथ अपने आप ही ऑनेस्ट हो जाते हैं। आपका वर्क एकदम ऑनेस्टली करिए पेशेंट के साथ। कोई भी क्या बोलते हैं फ्रॉड या ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ट्रस्ट धीरे धीरे आपके ऊपर डेवलप होता है। सर्विस के बारे में हम बात कर चुके हैं। फॉलो योर कमिटमेंट। जब भी हम क्लिनिक या प्रैक्टिस में जाते हैं तो अपना टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बराबर है। 9:30 बजे यानी 9:30, बहुत बार बोलते हैं डॉक्टर यार 9:30 बजे शार्प आ जाते हैं डॉक्टर। कोई कोई ओपीडी में देखते नहीं यार 9 का टाइमिंग है बट 1 बजे तक भी नहीं आता। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत क्या है यूजफुल होती है। कम्युनिकेशन की बात हमने की है, अकाउंटेबिलिटी की बात हमने की है, और लास्ट क्वालिटी जो है प्रोफेशनल वैल्यू, यू मस्ट एक्वायर दैट, यू मस्ट बिकम लाइफ लॉन्ग लर्नर। ओके, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर रोज केवल किताबों से ही नहीं बट बाय चांस हम सोसाइटी में भी जाते हैं तो बहुत सारी बातें हम सीखते हैं। तो वी आर लर्नर एंड वी हैव टू लर्न सो मेनी थिंग्स डेली। ओके, एजुकेशन है, डिग्री है बीएमएस, उसके बाद एमडी करेंगे, डिग्री है, प्रैक्टिस में आएंगे तो वैसे जैसे आप आगे आगे जाओगे वैसे वैसे बहुत सारी नई बातें आप सीखोगे और आपको सीखनी भी है। ठीक है, ये सारी अच्छी बातें हुई है, बट व्हाट एग्जैक्टली द अनप्रोफेशनल बिहेवियर जो हमारे मेडिकल फील्ड में अलाउ नहीं है? एब्यूज ऑफ पावर जिसे कहा है। फर्स्ट मीन्स मिसयूज ऑफ पावर। जैसे कोई पावर हाथ में आता है तो मिसकंडक्ट करना पेशेंट के साथ, या ऐसे केसेस में पेशेंट के साथ बायस करना, या सेक्सुअल हरासमेंट की जो केसेस होती है वो कभी कभी होती है। तो हमें ये सबसे दूर रहना है, बल्कि एडॉप्ट ही करना है। ओके, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, एरोगेंस। What is mean by arrogance? I am right, I am boss, ऐसी टेंडेंसी एज ए डॉक्टर, एज ए लीडर आप में कभी भी नहीं डेवलप होनी चाहिए। ओके, मैं जो बोलूंगा वही सही है और आपको वैसा ही करना है। सो दिस इज टोटली रॉन्ग। ग्रीडी, स्पेसिफिक अबाउट द मनी, यू मस्ट नॉट मोर ग्रीडी अबाउट द मनी। ओके, मिस प्रेजेंटेशन, कभी कभी पेशेंट के साथ झूठ बोलना, दैट इज वी कैन कंसिडर एज ए मिस प्रेजेंटेशन। इट इज नॉट अलाउड इन मेडिकल प्रोफेशन। इम्पेयरमेंट बाय मेंटल और फिजिकल, डॉक्टर का कोई भी इम्पेयरमेंट फिजिकली या मेंटली हो सकता है, दैट कैन हजार्ड मेक हजार्ड्स इन प्रैक्टिसिंग, और डॉक्टर पेशेंट रिलेशन में जो भी बाधा आते हैं वी कैन कॉल इट एज ए इम्पेयरमेंट। ओके, नेक्स्ट है जो हमने लैक ऑफ कॉन्शियसनेस, मीन्स जो हमने डेफिनेटली क्या फ्रूटफुल हमें मिलना चाहिए था, फल मिलना चाहिए था, वो हमें नहीं मिलता क्योंकि हमने वैसे मेहनत नहीं की है। एंड 7वां है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इस पे थोड़ा ज्यादा बात करेंगे क्योंकि बहुत बार ये शब्द आएगा आपको, व्हाट इज मीन बाय द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सो what is meant by conflict of interest? So it is nothing but the set of condition in which professionalism judgment like the patient welfare is influenced by the personal, academic, political or the financial gains. Means डॉक्टर का कोई भी बेनिफिट इसमें दिख रहा है तो उसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। आप कोई भी देखो, मेडिकल प्रोफेशन का बहुत बड़ा इथिक्स है कि आप कुछ लिख भी रहे, पेपर लिख रहे या रिसर्च कर रहे हैं, हाँ, या आप पेशेंट को कुछ दे रहे तो देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आपको पहले अनाउंस करना पड़ता है, लिख के देना पड़ता है कि मेरा भाई इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है। हाँ, क्यों ऐसा है? क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो कोई भी रूप में हो सकता है, मनी के रूप में हो सकता है, प्रमोशन के रूप में हो सकता है, ठीक है,
कोई यानी पब्लिकेशन बढ़ावा दे सकता है, आपको कोई परमिशन दे सकता है, आपकी फार्मेसी है भाई मैं लाइसेंस दे दूंगा तो ये ड्रग पास कर देगा, कोई भी क्या बोलते हैं उसे आमिष जो है वो हमें नहीं लेना है। और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या है, एक बार पता चल गया ये धब्बा है तो हमें उसकी तरफ जाना नहीं है। सो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल वी कैन कैटेगराइज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनटू डिफरेंट वे। फाइनेंशियल में जैसे स्टॉक में ओनरशिप देंगे आपको, है ना, कंसल्टेंसीज देंगे, पेटेंट देंगे, अरेंजमेंट, रिसर्च ग्रांट, ऐसे कुछ बहुत सारे फाइनेंशियल जहाँ पे मनी से रिलेटेड बेनिफिट होता है हमें एज ए डॉक्टर। और नॉन फाइनेंशियल यानी प्रमोशन मिल रहा है आपको, है ना, कुछ अवार्ड रिवॉर्ड मिल रहे हैं, तो ये नॉन फाइनेंशियल होगा। मीन्स एनी टाइप ऑफ बेनिफिट इंस्टेड ऑफ पेशेंट इंटरेस्ट, जिसमें पेशेंट का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वी कैन कंसीडर इट एज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट अनप्रोफेशनल बिहेवियर। जैसे आप स्टूडेंट लाइफ से शुरू करेंगे तो आपको क्लासरूम में भी जाना है और क्लिनिकल सेटिंग में भी जाना है, तो हमारी तरफ से कुछ गलतियां हो सकती है या होती है कुछ स्टूडेंट से, वो हमें नहीं करनी है। जैसे कमिंग लेट टू द शेड्यूल क्लिनिक्स अपना 8:30 बजे क्लिनिकल पोस्टिंग शुरू होती है और हम हमेशा लेट पहुंचना, ये अनप्रोफेशनल है। ड्रेसिंग इन एप्रोप्रिएट, कहाँ है आपका एप्रन कंपलसरी है, स्टेथो कंपलसरी है विथ आप जब भी प्रैक्टिस के लिए आएंगे, बट हम एप्रन बहुत बार भूल जाते हैं, नहीं पहनते, ठीक है। अवॉइडिंग वर्क और द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो हमारी वर्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे टीचर ने, हमारे डॉक्टर ने हमें पढ़ाई है, वो हम अवॉइड करने की बहुत बार कोशिश करते हैं, ठीक है। एग्जिबिटिंग लिटिल एम्पैथी फॉर द पेशेंट जब भी आता है, मैंने कहा सिंपैथी से मोर देन एक स्टेप होता है एम्पैथी, कि पेशेंट की जो एग्जैक्टली फीलिंग है वो स्टूडेंट, एज अ मेडिकल स्टूडेंट, एज अ डॉक्टर, एज अ केयर टेकर, यू मस्ट फील दैट कि उसने कहा मेरा क्या है, पैर दर्द हो रहा है या सर दर्द हो रहा है, तो सर दर्द होना, ये फीलिंग आपको आनी चाहिए कि इसका कैसा सर दर्द हो रहा है, that can be considered as a empathy. Okay, demonstrating lack of sensitivity to the patient's cultural backgrounds, ऐसी गलती से भी कोई बात नहीं करना है कि जिससे पेशेंट का रिलीजन या कल्चर जो है वो रिलेटेड हो, ठीक है। नॉट प्रोटेक्टिंग पेशेंट्स कॉन्फिडेंशियलिटी, पेशेंट की सारी बातें खुलेआम डिस्कस करना अलाउ नहीं है, दिस इज कंसिडर्ड एज ए अनप्रोफेशनल बिहेवियर। ओके, तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी आपको मेंटेन करके ही रखना है। सो अगेन वी कैन से दैट इन क्लासरूम सेटिंग यूजिंग मोबाइल फोन ड्यूरिंग द क्लासेस, अगर आज की जनरेशन की बात करते हैं हम लोग, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं क्लासरूम में, है ना, कि क्लासरूम लेक्चर चल रहा है और स्टूडेंट अपने मोबाइल फोन पे बिजी है, ठीक है, मेकिंग चार्ट विथ सम फ्रेंड्स और एनीबॉडी एल्स, फोकसिंग ऑन अ टेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द लर्निंग, हम क्या पढ़ना है छोड़ के बस टेस्ट में पास होना है, बस इतना ही हम केवल सोचेंगे। प्री जजिंग द कंटेंट इन एडवांस, मीन्स क्या है कि पहले पूर्व ग्रह बाधा जिसे बोलते हैं, पहले किसी के बारे में अपना एक प्री जजमेंट बना लेना, उसको समझे भी नहीं, गलत हो सकता है सही भी हो सकता है, बट पहले ही ऐसा करना, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। इनटॉलरेंस ऑफ द ओपिनियन ऑफ अदर्स, अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं, 4 लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टीचिंग टेक्नोलॉजी में आपका इन्वॉल्व है, डिस्कशन करिए, एक दूसरे से पूछिए, है ना, ओपिनियन लीजिए, बट अगर आप कहते हैं मैं किसी का ओपिनियन सुन ही नहीं सकता एंड आई एम द राइट पर्सन ओनली, व्हाट आई हैव स्टेटेड इज राइट ओनली, तो ये भी अलाउ नहीं है। एंड इन एप्रोप्रिएट डिमांड्स, अननेसेसरी डिमांड कोई भी आपकी नहीं होनी चाहिए, आपके एजुकेशन से रिलेटेड है, बुक से रिलेटेड है, प्रोफेशन से रिलेटेड है, इट्स ओके, बट अननेसेसरी कोई भी डिमांड आपकी नहीं हो सकती। So this is again considered as a unprofessional behavior. Okay. This is about the role of doctor in the healthcare system. जैसे आप इंटर्नशिप पास करोगे, उस लेवल पे आप डॉक्टर बन गए, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। So you are now the part of healthcare system. So you have to understand that healthcare system. Okay. You have to understand the clinical responsibilities. ओके, दूसरा कोई फेलो है, डॉक्टर फेलो, उसको अप्रिशिएट करना। मेंटोर, जैसे आप एकेडमिक में आए हैं, आपके स्टूडेंट है, मेंटोर मेंटी एक हम स्पेशल सेल बनाते हैं ना, तो उसको अप्रिशिएट करना।
जो भी किसी ने अच्छा काम किया है उसको अप्रिशिएट करना एक डॉक्टर की और उसको सपोर्ट करना एक जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो ये सब आपको करना है। सो हाउ कैन स्टूडेंट लर्न द प्रोफेशनल वैल्यूज? आप खुद होके इसको कैसा सीख सकते हैं? सम स्टूडेंट ब्रिंग्स this ethics, moral of ethics with them. Some brings to medical college with them. मीन्स कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ऑलरेडी ये पता होते हैं, उनमें सभी ये क्वालिटीज इनकलकेट होती है। आप में से भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको कुछ कुछ वैल्यूज इसमें पता होगी और आप ऐसे बिहेव करते होंगे, है ना? बट एवरीबडी, सब स्टूडेंट ऐसे होंगे ऐसा नहीं है। दैट्स व्हाई वी इम्प्लीमेंटेड दिस प्रोफेशनल एथिक्स प्रोग्राम इन द curriculum, so that the every student must learn it. Okay, and some student learn from their role models. रोल मॉडल्स होते हैं अपने अपने कि भाई नहीं ये व्यक्ति बहुत अच्छा होता है। हर एक के जीवन में रोल मॉडल हो सकते हैं, भले ही आपके मम्मी हो, आपके पापा हो, आपका कोई फ्रेंड हो, रतन टाटा जी हो सकते हैं, कोई भी रोल मॉडल हो सकते हैं आपके लिए, है ना? अंबानी जी हो या कोई डॉक्टर जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं कि आप उसको देखते हैं नहीं मुझे ऐसा बनना है, तो आप वो वैल्यू अपने आप में ढालना शुरू करते हैं। ऐसे कोई आपके टीचर अभी तक के 12th तक के याद आते हैं आपको कि जो आपको अभी भी याद है? यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस हियर। कोई भी आप स्टूडेंट, अगर आपको कोई ऐसे टीचर है उनकी कोई भी एक क्वालिटी की वजह से बहुत याद रहते हैं और आप उनके जैसा बनना चाहते हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं। एनीवन? हॅलो हाँ हॅलो, मॅडम, आवाज येतोय? हाँ येतोय मॅडम, बोला. धन्यवाद मॅडम. जर विद्यार्थ्यांना कुठला प्रश्न असेल तर त्यांनी मॅडमला कृपया विचारावे. हा जस्ट मी मॅडम त्यांच्याशी काउन्सिलिंग करत होते. लास्ट 2-4 स्लाइड राहिले माझे आता. ओके. ओके. हाँ, हाउ कैन वी टीच देम एज अ टीचर? हाउ कैन वी टीच देम? रोल मॉडलिंग, बेड साइड टीचिंग हम क्लिनिक में लेते हैं, सिमुलेटेड पेशेंट हम लेते हैं और स्मॉल ग्रुप डिस्कशन भी हम करते हैं उसके लिए. ठीक है. पर्सनल डेवलपमेंट, एज अ मेडिकल स्टूडेंट यू हैव टू बिकम लाइफ लॉन्ग लर्नर. ठीक है. सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए, सेल्फ केयर होना चाहिए, मोटिवेशन, कमिटमेंट, इनिशिएटिव. कोई भी बात खुद होके शुरू कीजिए, है ना? अगर 2 पर्सन आपस में मिल रही है तो बहुत बार पहले तुम में ऐसे में ट्रेन निकल जाती है अपनी, ऐसा ना होना चाहिए. तो इनिशिएटिव टॉक यू मस्ट स्टार्ट. ओके. और इसके बाद आप करियर चूज कर सकते हैं. आपको प्रैक्टिशनर बनना है, आपको एकेडमिशियन बनना है, आपको रिसर्चर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, आपका फार्मेसी लैब हो सकता है, कोई भी डेवलपमेंट आप कर सकते हैं. वी हैव ग्रेट चांस अहेड. ओके. हाउ कैन वी असेस एज अ टीचर? स्टूडेंट को हम कैसे असेस करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस मिलर्स पिरामिड वी कैन असेस द स्टूडेंट्स. मीन्स व्हाट दिस 2 डाउनवर्ड levels of Miller pyramid shows that knows and knows how. स्टूडेंट को पता है और कितना पता है. ओके. पता है तो shows and how does, मीन्स वो बताए और करके बताए हमें. तो वो मिलर्स पिरामिड की एक क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में एक दी हुई लेवल्स है जिसके बेसिस पे हम स्टूडेंट को यानी आपको असेस करते हैं और असेस करना है. ओके. तो इस हिसाब से हमें जो है अपने आप में कॉम्पिटेंसीज जो है वो बिल्डअप करनी है. सो व्हाट वुड यू डू इन प्रैक्टिस? प्रैक्टिस में हम जब भी बैठेंगे तो आपको एक बात याद रखना है, इन्फॉर्म कंसेंट. ओके. इन्फॉर्म कंसेंट क्या है कि जैसे हमने पहले कहा है कि एक पेज लिखा हुआ रहता है जिसमें पेशेंट को समझेगा उस लैंग्वेज में लिखा रहता है कि ये सर्जरी है, ये प्रोसीजर है, इसके ऐसे ऐसे धोखे हो सकते हैं, हाँ हजार्ड्स हो सकते हैं, फिर भी आप ये सर्जरी करने के लिए तैयार है, उसका नीचे साइन. तो ये इन्फॉर्म कंसेंट एक डॉक्यूमेंट होता है जो हर एक प्रैक्टिशनर, हर एक मेडिकल प्रोफेशनल में जो है वो अगर पेशेंट को देख रहा है तो लेता ही है. ठीक है. उसके लिए बाद में पेशेंट इंफॉर्मेशन शीट होनी चाहिए. कुछ और इंफॉर्मेशन है पेशेंट के बारे में तो आप उसको कलेक्ट करके रख सकते हैं. सो informed consent is not only the piece of paper, but it is also not a signature, but it is the process by which we ensure the subject's right to be informed and right to consent is protected. Okay. एक documentation रहता है अपने पास so that we are being very safe. कोई अगर मेडिको लीगल कल केस होता है तो हम ऐसे में बहुत सेफ रह सकते हैं. और एक बात और ध्यान रखें, बी वेरी केयरफुल अबाउट द स्पेशल एंड वल्नरेबल पॉपुलेशंस. मीन्स जैसे चिल्ड्रन है, प्रेग्नेंट वुमन है, मेंटली चैलेंज डिसीज है,
स्टूडेंट है, फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट है या प्रिजनर है, तो इनको कभी भी ट्रीटमेंट देते समय बहुत केयरफुली कॉशियसली हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है। इनके लिए नियम बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। ओके, और लास्ट पॉइंट है डिस्क्लोजर ऑफ डाटा। जैसे हमने पहले कहा कि पेशेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन हम यानी ओपन नहीं कर सकते, बराबर है। बट इन सम केसेस अगर जैसे कोर्ट से ऑर्डर आया है, कौन सा ड्रग दिया था आपने, आपका क्या रिएक्शन हुआ, उसमें क्या गलत हुई, या कुछ धोखा है क्या पेशेंट की लाइफ को, तो ऐसे समय हम वो डाटा जो है वो यूज कर सकते हैं, पेशेंट की इंफॉर्मेशन बाहर दे सकते हैं, ओनली इन केस ऑफ लॉ अंडर जज ऑर्डर। ओके, अदरवाइज हम पेशेंट का कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं दे सकते हैं। एंड लास्टली रिमेंबर द थिंग, follow the ethical guidelines throughout your practices. Informed consent with sign and date is very important documentation. And be careful about the special groups, means pregnant child, handicapped child, prisoner या student है, इनके बारे में आपको बहुत carefully रहना है। ethical guidelines कौन से होंगे, तो पहले बेसिक 4 principles है जो हमने पढ़े थे, autonomy, beneficence, non malfeasance and the justice. Okay, so this is take home message from my side. Dress your best, give your best, speak your best, listen your best, work your best, live your best, so that you can become successful doctor. Thank you very much. So I have finished my presentation here, ma'am, and now students, if you have query, you can ask me. Hello. Thank you, ma'am. Madam, you are not audible. Vaishali ma'am. Now. Again? Okay. येस, कुणाला प्रश्न नाहीत का काही? प्लीज विचारा मॅडमला. पूछो, कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, कैसा करना क्या है, तो आप वी कैन फ्रीली डिस्कस हियर. येस, वेदांत, भक्ति, एनी क्वेश्चन? ठीक आहे, धन्यवाद मॅडम. आजच्या सेशनचा शेवटचा टप्पा म्हणजे आभार प्रदर्शन. मी डॉक्टर कल्पना टवलारे मॅडमचे खूप आभार व्यक्त करते. त्यांनी या 1 तासाच्या सेशन मध्ये इथिक्स म्हणजे काय, त्याचे प्रिन्सिपल्स आणि आपण ते प्रॅक्टिस मध्ये कसे अप्लाय करायचे याबद्दल खूप मोलाचे मार्गदर्शन केले. त्याबद्दल मी त्यांची आभार व्यक्त करते. तसेच हा कार्यक्रमाचे नियोजन करण्याची संधी मला आमच्या कॉलेजच्या प्राचार्य डॉक्टर साखरकर मॅडम यांनी दिली, त्याबद्दल मी त्यांचे पण आभार व्यक्त करते. तसेच संपूर्ण सेशन हा ट्रान्झिशनल करिक्युलर प्रोग्राम ज्या 4th इयरच्या स्टुडंटनी कंडक्ट केला आहे त्या दिनेश राठोडचे मी विशेष आभार मानते. आणि सर्व विद्यार्थ्यांनी हा कार्यक्रम शांततेने, हे लेक्चर शांततेने ऐकून घेतले, त्याबद्दल पण मी त्यांची आभारी मानते. थँक्यू मॅडम, थँक्यू. आणि हे सेशन संपले असे मी जाहीर करते. Thank you, madam. For giving me opportunity. Thank you, madam. स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछना चाहिए, आप लोगों को एक्सप्लोर होना चाहिए. ओके, अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप मैडम से पूछ सकते हैं, मुझे कभी भी पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच. हाँ, Thank you, ma'am.